Ladies and gentlemen, good day, and welcome to Ganesh Green Bharat Limited H2 and FY25 earnings conference call hosted by 28 Consulting. From the company, we have with us Mr. Ketan Patel, Chairman and Managing Director, and Mr. Kunal Shah, Chief Financial Officer. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ketan Patel. Thank you, and over to you, sir. Good afternoon. My name is Ketan Patel, Ganesh Green Bharat Limited, CMD. हम गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड हम लोग वैसे तो ईपीसी काम करते थे। पहले स्टार्टिंग हमारा काम ईपीसी का था। जैसे जैसे हम लोगों को रिक्वायरमेंट मॉड्यूल की जरूरत पड़ी, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग ईपीसी में काम करते थे तो हम लोगों को टाइम पे डिलीवरी का प्रॉब्लम होता था। तो हमने पहले ईपीसी से मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में आए। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में हमने जब स्टार्ट किया तब हमने पॉली से स्टार्ट किया था। पॉली टेक्नोलॉजी तो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई। फिर हम लोग टॉपकॉन में ज्वाइन हुए। टॉपकॉन में हमने 250 मेगावाट का हमारा लाइन था। उसके बाद हम लोग आईपीओ लाए। तो आईपीओ के बाद हम लोग 450 मेगावाट का लाइन हम लोग लाने वाले थे, लेकिन हमने प्लानिंग 750 मेगावाट का किया। इसमें हम लोग ज्यादातर जो हमारा काम है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हिसाब से पहले जो मोनो बना रहे थे, तो मोनो के बाद हम लोग टॉपकॉन भी बना रहे हैं। टॉपकॉन मॉड्यूल जो है इंडिया में पहला जो बीआईएस है गणेश ग्रीन भारत से ही शायद होगा। और दूसरा चीज ये है कि भाई ये जो मॉड्यूल है उसमें हमारी जो लाइन है ये मल्टी बस बार सपोर्टेड लाइन है। हम लोग इसमें अगर चाहे तो टॉपकॉन भी बना सकते हैं, मोनो भी बना सकते हैं, और आईबीसी टेक्नोलॉजी को छोड़ के मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके सपोर्टेड मशीनरी है। ज्यादातर हमारे जो कस्टमर है उसमें हम लोगों का काम है पीएसयू कंपनी में काम करते हैं। इसमें एसजेवीएनएल हो गया, एनटीपीसी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, इंडियन ऑयल है। तो और अगर मल्टीनेशनल कंपनी को हम लोग बताए तो केएसबी है और किर्लोस्कर है। इतने लोगों का जो गवर्नमेंट जो काम होता है, जो बैक टू बैक मतलब काम होता है, ईपीसी काम करते हैं, उसमें हम लोग मॉड्यूल सप्लाई करते हैं। Now, myself, Kunal Shah, I am the CFO of the Ganesh Green Bharat Limited. We have our revenues for the current year is the 317 CR and our bottom line is the 13.42 CR. So currently our order on hand is around 1,140 CR, and we are working with the 750 megawatt capacity, and we are planning to expand our capacity is 1.1 gigawatt in the August 20 operational by in the August 25. That's it from my side. Thank you very much. We will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and 1 to ask a question. First question is from the line of Paras Chera from Purple One Vortex. Please go ahead. Okay. Good evening, sir. Ketan bhai and Kunal bhai. Generally, we have seen good result, and congratulations for that.
थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे बेसिकली मेरा 2 क्वेश्चन था। एक है कि अपना अगस्त में अभी 750 मेगावाट का कैपेसिटी आ रहा है, तो 1.1 गीगावाट होगा। तो आगे जाके ग्रोथ प्लान किस तरह से होंगे? मतलब अभी 1.1 पे अपन जाएंगे एंड प्रोबेबली शायद कंपटीशन भी होगा, तो अपन मॉड्यूल सप्लाई में कैपेसिटी एक्सपेंशन का देखेंगे, कोई और एरिया में देखेंगे, कि कैसे देखेंगे ऑन द टॉप लाइन बेस? तो एक वो क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अपना जो ये ईपीसी के प्रोजेक्ट्स थे जो 17-20% मार्जिन दे रहे थे, अब वो प्रपोर्शन कम हो गया है, तो वो रीजन मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों है। और मतलब बेसिकली 13-15% अभी जो एबिटा मार्जिन ऑन मॉड्यूल है, क्या वो सस्टेनेबल है या वहाँ पे थोड़ा सा अपने को प्रेशर एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड? मतलब फिलहाल तो ये 2 क्वेश्चन है। मतलब अभी जो है, जो मतलब ईपीसी में क्या है ना कि भाई टेंडर बेस्ड काम होता है, और हमारा जो टेंडर आप लास्ट 5 साल से देखेंगे तो हमारा क्या मार्जिन लेवल हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर अच्छे प्रॉफिट में अगर टेंडर नहीं है तो हम लोग को मतलब 2 तरीके से टेंडर आता है। एक तो ये है कि भाई आप एक 1000 करोड़ का टेंडर मान लो आ गया, उसमें गवर्नमेंट को अगर इमरजेंसी है तो वो टेंडर को स्प्लिट करती है, L1 से मैच करवाती है कि भाई आपको L1 मैच करो तो आपको भी काम मिल जाएगा। तो इसमें हमारा यही है कि भाई अगर रेट सही नहीं होता है तो हम लोग L1 मैच नहीं करते। काम तो बहुत आते हैं टेंडर, लेकिन क्या होता है L1 मैच नहीं होता है। दूसरी चीज है कि भाई हमने अभी ज्यादातर अभी जो सेटअप है, तो मॉड्यूल का अभी आप देखिए कि भाई अगर मुझे भी अगर मॉड्यूल चाहिए अगर आज की डेट में, तो मॉड्यूल है नहीं बाहर से। मैं जितना मतलब प्रोडक्शन करता हूँ उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, तो उस टाइम हम लोग टेंडर भी अगर ईपीसी का लेते हैं तो उसमें काम करने में दिक्कत आती है। तो अभी क्या हमने पहले हमारा फोकस ये है कि भाई हम लोग अभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ में हम छोटे मोटे मतलब हमारे पास वैसे भी 1100 के समथिंग ऊपर हमारा अभी ऑर्डर बुक है। तो हम लोग अपनी ऑर्डर बुकिंग मॉड्यूल सप्लाई में ज्यादा है और ईपीसी में अभी कम है। हम लोग ये कर रहे हैं कभी पहले हमारा मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का हमारा 1.1 गीगावाट जो है, उस जो टारगेट है हमारा अगस्त में, उसको हम लोग पहले टारगेट में है। साथ में हम लोग टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे टेंडर पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो वैसे वो काम हाँ। तो 2 क्वेश्चन कि ये जैसे मॉड्यूल में ही अपना मेनली है, तो ये अबाउट ये 14-15% मार्जिन सस्टेनेबल लग रहा है अपने को 2-3 साल के लिए एटलीस्ट? देखो हमारा एक चीज है कि हम लोग ज्यादातर हमारे कस्टमर एक लेवल के ऊपर के हैं, क्वालिटी वाले कस्टमर है। जैसे मतलब पीएसयू कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी में क्वालिटी चलता है, और जो बाकी जो बचे हुए कस्टमर है वो भी हमारा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो वो भी क्वालिटी वर्क मांगती है। तो मार्जिन क्वालिटी अगर हम लोग दे रहे हैं, उनको क्वालिटी चाहिए, तो हमारे कंपटीशन इतना है नहीं, इसीलिए हमारा थोड़ा मार्जिन आ रहा है मॉड्यूल में, और हम लोग कोशिश करेंगे उसको मेंटेन रखेंगे, स्टेबल रखेंगे आगे जाके भी। और मॉड्यूल लाइन का जो भी बिट और पैट है उसको हम लोग स्टेबल रखेंगे यहाँ पे। अच्छा। और कुणाल भाई, सेकेंड ग्रोथ केतन भाई के क्वेश्चन की, ये अपना ग्रोथ जो अभी यहाँ से है 350 मेगावाट आने के बाद, कोई इनिशियल थॉट प्रोसेस के मतलब आगे जाके कैसे करेंगे? बिकॉज शायद हो सकता है यहाँ पे मॉड्यूल का भी एक कैपेसिटी बिल्ड हो रहा है सिस्टम में, तो मतलब किस तरह से देख रहे हैं अपन फ्यूचर ग्रोथ के लिए? मतलब ऑफकोर्स अपना ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है एंड अपना वहाँ पे भी काम अच्छा होगा, बट जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमारा जो अभी प्लान है, हमारा जो 1.1 गीगावाट की जो लाइन आ रही है उसको हम लोग 70% के आसपास 70-75% यूटिलाइजेशन पे हम लोग उसको रखेंगे, तो उस हिसाब से हमारा ग्रोथ रहेगा। ओके।
राइट। और फ्यूचर कोई कैपेसिटी एडिशन या कुछ ऐसा आगे? अभी इनिशियली कोई स्टेज पे नहीं, और अभी अगर होगा तो हम इंटीमेट करेंगे एनएससी को। अभी कोई ऐसा प्लान नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये fair enough. ठीक है, I'll come back in that. ओके। Thank you. Participants, you may press star and one to ask the question. Next question is from the line of Ashish Rawat from MS Club Stock. Please go ahead. केतन भाई नमस्कार। नमस्कार। बढ़िया रिजल्ट, मुबारक है बहुत बहुत। केतन भाई मेरा सवाल था, एक तो अपना सर जो अपना 1 GB कैपेसिटी का भी जो मशीनरी आया है, इसका अपन लोग का डिले हुआ है सर। एक तो इसका रीजन क्या रहा सर? सर हमारा जी बताइए। नहीं पहले आप बताइए सर इसमें ऐसा है कि डिले होने का कारण क्या था कि भाई हमने ऐसी मशीनरी, इसमें क्या है ना, नॉर्मली मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट इंडिया में खूब है, बाहर भी बहुत रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमने जो लाइन जो कैपेसिटी बढ़ा रहे थे, तो उसमें खाली न खाली ऐसा था कि भाई हमारा लाइन में खाली कैपेसिटी बढ़ा रहे थे। तो भाई अगर हमारा 7.5 है मेगावाट, तो 1.1 गीगावाट कर रहे थे। अब हम लोग उसके साथ स्पेयर मशीन भी इसमें रख रहे हैं कि भाई अगर हमारी कोई मशीनरी शटडाउन आ गई तो दूसरे मशीन से प्रोडक्शन नहीं रुके। तो हमने जो डिजाइन किया है अभी, तो डिजाइन में चेंजेस आया हुआ है कि हमने सारे मशीन, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आप क्या कर रही है, कभी इंस्टेंट अपने को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी आज चाइनीज, ये क्या है, पूरी मशीनरी बाहर से आती है, और अगर कोई स्पेयर पार्ट खराब हुआ या मतलब शटडाउन हो गया तो 2-3 दिन का शटडाउन बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए हमने क्या किया कि भाई हमने सारे जो मशीन है, जितने भी मशीन लग रहा है कि भाई उसके ऊपर लोड है, बाय नॉर्मली क्या 18 सेकंड को मेंटेन करने के लिए जो जो मशीनरी स्पेयर में चाहिए, मॉड्यूल एक मॉड्यूल 18 से 20 सेकंड में निकलता है नॉर्मली एक मॉड्यूल। तो हमको क्या है कि भाई सारे जो मॉड्यूल को 18 सेकंड के लिए जो भी स्पेयर मशीन चाहिए या जो भी मशीनरी चाहिए, इसके लिए स्पेयर डिजाइन किया हुआ, इसीलिए थोड़ा डिले हुआ है। अच्छा, तो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट आप ले रहे हैं ताकि आगे प्रोडक्शन हार्ट ना हो कभी किसी के। हाँ, और दूसरी चीज है कि भाई हमारा नॉर्मली क्या होता है कि भाई हम जो बता रहे हैं कि भाई 75% जो यूटिलाइज हो रहा है नॉर्मली, तो ये प्रैक्टिकल 75% यूटिलाइज होगा, इसके हिसाब से हमारी तैयारी की हुई हमने। उसके हिसाब से हमें रेवेन्यू भी आपको दिखेगा वहाँ पे 75% के हिसाब से। अच्छा केतन भाई, जो अभी स्थिति है अपने इंडियन मार्केट में सोलर को लेके, ऑर्डर तो बहुत है और कंपनी भी धीरे धीरे बहुत आ रहा है। क्या इसकी वजह से अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, चाहे वो अपना इंस्टॉलेशन साइड पे हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग एज पे हो, क्या इस पे आने वाले टाइम में प्रेशर आएगा? क्या ये एक लेवल पे जाके कहीं पे ये स्टेबल होगा? पूरी इंडिया की आप बात कर रहे हैं या मतलब कंपनी लोग तो पूरी इंडिया पे ही काम करते हैं ना, नॉट तो या अपन लोग गुजरात में कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्या, पूरा सोलर इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा सवाल ये है कि अपन लोग तो सोलर इंडस्ट्री के अंदर सोलर मॉड्यूल प्लस ईपीसी काम कर ही रहे हैं। हाँ, ओके। गवर्नमेंट टेंडर निकालती है तो अपन लोग उसको भरते ही हैं, है ना। टेंडर अपने को चाहिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, मेरे कहने का मतलब। ओके। तो जब इतना गवर्नमेंट अब इस पे पैसा डाल रही है, इस इंडस्ट्री को बढ़ा रही है, तो कंपटीशन भी आ रहा है और कंपनियां भी आई जा रही हैं। आ रही है। इसकी वजह से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे दबाव रहेगा आने वाले टाइम पे, चाहे वो ईपीसी है चाहे वो अपना पैनल मैन्युफैक्चरिंग है? ये मैं जानना चाह रहा था, क्या अपन लोग इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को स्टेबल या बढ़ा सकते हैं? सर हमारा ये है कभी नॉर्मली एक चीज है कि हमारा कोरोना के एक साल में हमारा मतलब 9% से नीचे पैट हुआ था। हमारा टारगेट यही रहता है कि भाई 9% से लेके 11-12% तक का पैट मार्जिन रहे। नॉर्मली ये चीज है कि भाई हम लोग ईपीसी में काम कर रहे हैं, कैप्टी भी हमारा खुद का है। अच्छा, ईपीसी करे तो कैप्टी है हमारा खुद का है।
और डायरेक्ट टेंडरिंग का काम है हमारे पास। अच्छा तो मार्जिन में हम लोगों को पता है कि भाई मार्जिन मेंटेन कैसे करना है। दूसरी चीज है मार्जिन में, दूसरी चीज ये है भाई इंडिया की टोटल कैपेसिटी अगले पिछले साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो मतलब 23 मेगावाट या 24 मेगावाट का ही काम हुआ है। आज भी इंडिया में बहुत सारे मशीन, बहुत सारी कंपनियां आ गई है, प्रोडक्शन बता रहे हैं 2 गीगावाट 3 गीगावाट, लेकिन एक्चुअल जो कितना आ रहा है पूरा गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के ऑन पेपर पे है कि भाई 23 या 24 मेगावाट का ही मतलब इंडिया में प्रोडक्शन हुआ है, काम हुआ है मतलब। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट हर साल में मिनिमम 50 गीगावाट या 60 गीगावाट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से अगर दूसरी इतनी कंपनियां और जुड़ जाती है तो भी बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है कभी अभी जो मॉड्यूल है बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं, तो इंडिया पूरा वर्ल्ड में अभी मॉड्यूल मतलब सप्लाई करता है। यूएस है और भी बहुत सारी कंट्रियां है, तो वहाँ भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो अभी तो नहीं दिख रहा है। और दूसरा ये है कि भाई अगर हम लोग क्या होता है कि भाई टेक्नोलॉजी के साथ अगर चलते हैं, कोई भी नया टेक्नोलॉजी आती है और उसको सपोर्टेड मशीनरी है तो मार्जिन मेंटेन रखने में कोई दिक्कत नहीं आती नॉर्मली। अच्छा केतन भाई, लास्ट कॉन कॉल में जब हम बात कर रहे थे, एक ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। आपने बताया था हम लोग एक तो सोलर सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, ठीक है, उसके लिए पैसा जुटाएंगे। उसमें एक बात ये भी था कि अपना शेयर का वैल्यू भी बढ़ेगा तो उससे भी कुछ हमको लाभ मिलेगा। दूसरा ये जो आपने बताया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एनहेंसमेंट हो रहा है, पहले हाफ कट था, फिर ये आया, फिर नेक्स्ट आया, एचटीसी आया, तो अगर अपन लोगों को इसको मेंटेन करना है तो फिर अपने पास क्या अरेंजमेंट है, हम लोग कैसे इसको करने वाले? मान के चलो 1.5-2 साल आगे जाने वाले, क्या इन्वेस्टमेंट का हमारा आगे क्या फीचर रहने वाले? देखो हमारा स्टेप बाय स्टेप है। कभी पहले तो हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी हर साल में हम बढ़ा रहे हैं। वैसे हमारा एएलएम में तो हमारा कैपेसिटी पहले टारगेट है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वैसे वैसे हम लोग अपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और दूसरी चीज एक बजे लगेगा भाई अब सेल भी मतलब डीसीआर सेल की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हमको भी अगर जरूरत पड़ेंगे तो उस टाइम सोच के आगे बढ़ेंगे। कुछ बता सकते हैं कि क्या किस टाइम फ्रेम पे अपन लोग ये स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं? आपके पास प्रोजेक्शन है? नहीं है, रिकॉर्ड नहीं सकते गाइडलाइन। चलिए ठीक है, धन्यवाद केतन भाई। I'll be in queue. Okay, thank you. Thank you. Next question is from the of Reena from Paul Asset Consultant. Please go ahead. हाँ सर, मैं रीना बोल रही थी। तो सर मेरा पहला सवाल ये था कि अभी सर हमारे पास 1140 करोड़ का ऑर्डर बुक है जैसे कि आपने बताया, और सर आपने बोला कि और आपने बहुत सारे ऑर्डर्स में बिड भी किया है। तो सर मैं ये जान सकती हूँ आगे मतलब कितने ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल और कितना का रेवेन्यू हो सकता है? आपने ये भी बताया कि ये जो आपका 750 मेगावाट का प्लांट है, ये इस साल आपका 70 से 75% यूटिलाइज होगा। तो इस साल की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की क्या होगी ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर बुक सर? एक तो ये चीज है कि हम लोग अभी जो प्लांट हम बढ़ा रहे हैं 1.1 गीगावाट, तो हम लोग उसको 70 से लेके 75% की यूटिलाइजेशन पे हम लोग करेंगे प्लांट। दूसरा, पिछला हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो आपको ग्रोथ दिखेगा कि हम लोग 105 से स्टार्ट करके 170 से लेके 370, तो उस हिसाब से भी आगे का ग्रोथ रहेगा क्योंकि हमारी ऑर्डर बुक अभी 1140 करोड़ के आसपास है मोटा मोटी। और अभी हम जो एग्रेसिवली टेंडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम वहां से भी अच्छा काम ले और वहां पे हम जो क्वालिफाई हो। हाँ, पर नंबर अमाउंट हम अभी कुछ नहीं बता सकते, पर आप ये जर्नी देख सकते हो पास्ट की कि हमारा ग्रोथ कौन से हिसाब से हो रहा है।
तो वही कंटिन्यू रहेगा हमारा ग्रोथ ऑन टॉप साइड एंड बॉटम साइड, बोथ साइड। तो सर मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी इस साल भी 80% प्लस ग्रोथ रेट होगा आपका टॉप लाइन में। हम अभी इस पे परसेंटेज से नहीं बात कर सकते, पर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के, आप ऑर्डर बुक देख के ही आपको पता चलेगा कि हम कितना ग्रोथ कर सकते हैं। आप खाली कैलकुलेटर लगा दिए, आपको जो है बराबर मेगावाट हमने बोल दिया कि भाई इतना प्रैक्टिकल 75% यूटिलाइज होगा पर मेगावाट का कॉस्टिंग। हाँ 1100 मेगावाट में से इतना मतलब प्रैक्टिकल होगा, तो उसके हिसाब से जो मेगावाट का जो रेट चल रहा है उसके आप कैलकुलेटर लगा सकते हैं। वो जो बताए वो मॉड्यूल का हुआ है। उसके बाद ईपीसी का दूसरा ईपीसी का अलग से रहेगा। और दूसरा हमारा ऑर्डर बुक अभी 1140 करोड़ है, तो आप उससे भी प्लेस कर सकते हो कि हम क्या रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं अगले साल में। अच्छा सर, ये जो 1140 का ऑर्डर बुक है इसमें ईपीसी का कितना परसेंटेज है और मॉड्यूल का कितना परसेंटेज आप बता पाएंगे सर? इसमें 30% के आसपास मेरा ईपीसी है, 25 to 30, और बाकी मॉड्यूल का है। अच्छा, तो सर इस साल हम जो पूरा फाइनेंशियल ईयर में भी 30% ईपीसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेवेन्यू? 30% इंक्लूडिंग द मॉड्यूल, क्योंकि सोलर पंप का काम है, तो वो एक्चुअली क्या होता है उसमें मॉड्यूल भी आ जाती है और पंप भी आता है, उसका जो ईपीसी का काम रहता है। दूसरा हमारे एक 73 करोड़ के आसपास का एसजीवीएनएल का है ऑर्डर, तो वो पूरा ईपीसी है, मतलब मेगावाट का प्लांट काम है पूरा। तो इसमें मॉड्यूल के साथ आ जाता है। 70% आप पकड़ सकते हैं, 30% पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें 30% विथ मॉड्यूल के पास आ जाए, साथ आएगा वो। अच्छा सर, ये जो आप मतलब 30% बोल रहे हैं वो ईपीसी पर उसके साथ में ये आपका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग भी होगा क्या? 30% जो आप बोल रहे हैं? हाँ 30% में मॉड्यूल भी आएगा और मतलब अलग से 70% फिर से मॉड्यूल आएगा? ये अकेला मॉड्यूल डायरेक्ट सप्लाई है, उसमें मॉड्यूल ही सिर्फ मुझे देना है, कंपनी को और गवर्नमेंट को। ओके, और इसमें आपका ईपीसी प्लस मॉड्यूल हो गया। हाँ यस। और सर मेरा आखिरी सवाल था सर, ये जो आपका अगस्त में जो आ जाएगा आपका एडिशनल कैपेसिटी 1.1, तो वो मतलब एक्सपेक्टेड है कि विद इन अगस्त में मतलब वो ऑपरेशनल हो जाएगा कि मतलब आगे फिर से एक्सटेंड होने का कुछ? अगस्त में ऑपरेशनल हो जाएगा वो 99 नहीं 110% हो जाएगा अगस्त में। वी आर ऑन द ट्रैक, तो हम बोल सकते हैं उसका अगस्त में हो जाएगा ये। Okay, sir. Thank you very much for answering my question, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Next question is from line of Shalin Tanna, an individual investor. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Yes, Shalin, go ahead. Congratulations sir for a good set of numbers. मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जो हमें लास्ट में जो बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है नेटवर्क टेक्नोलॉजी से, वो उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा है कि द ऑर्डर इज टू बी फुलफिल्ड विद इन 6 months। तो अभी तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हम ऑर्डर 6 months में फुलफिल कर सके, तो ये हम कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि भाई हमारा चांसेस है उसमें हम लोग कर लेंगे। हमने अपनी तैयारी पहले से भी की हुई है तो इसके लिए। और दूसरी चीज है कि भाई अगर नहीं हमारा से होगा तो हम लोग किसी को जॉब वर्क करवा के और हमारा टारगेट जो है वो हम खत्म करेंगे उसको। और ये 6 month है फ्रॉम द अप्रूवल होता है, तो हमारी अभी करंट कैपेसिटी है वो 55 मेगावाट की है पर मंथ की। ओके, अंडरस्टूड सर। ये फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल, 6 month फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल रहता है ये। ओके, अंडरस्टूड सर, थैंक यू। Okay. Thank you. Participants, you may press star and 1 to ask the question. Next follow-up question is from line of Paras Chheda from Purple One Vortex. Please go ahead. मेरे चेतन में 2 क्वेश्चन। एक इन्वेंट्री अपना जो 40 का 115 करोड़ हुआ है, तो क्या ये अपने एक्सपेंशन की वजह से ये बड़ा हुआ है और जो इन्वेंट्री अपने को दिख रहा है वो? एक वो क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन, अपन ने जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड किया है
आज की तारीख में उसका क्वांटम क्या होगा, मतलब रफली? देखो पारस भाई, दो चीजें तो ईपीसी बीड की अभी हम वैल्यू यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक कोर्ट एक अमाउंट फिगर है तो वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बता सकते एज पर दी गाइडलाइन। और जो इन्वेंट्री की बात है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर के हमारा जो ऑर्डर्स है हमारे, उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारी इन्वेंट्री साइकिल है वो रहती है 45 से लेकर 60 डेज की रहती है। तो जो मैं ऑर्डर बुक लेके बैठा हूँ अभी और जिसका प्रोडक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे जेटवर्क होगा और इन सोलर होगा, जो बड़े ऑर्डर है मेरे पास अभी, और भी ऑर्डर है जो 5-6 मेगावाट के 10 मेगावाट के, तो उसको फिल्डअप करने के लिए मुझे इन्वेंट्री चाहिए और सबका अभी प्रोडक्शन लाइनअप में है। तो एक बार ये प्रोडक्शन तो सितंबर को आपको वहाँ पे विजिबिलिटी दिखेगी इन्वेंट्री की भी, जो रिडक्शन आएगा और जो भी मेरा कैश फ्लो वगैरह जो भी आपको दिख रहा है साइड नेगेटिव साइड, तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि इन्वेंट्री मेरी बर्न आउट हो जाएगी वहाँ पे। राइट, फॉर 6 मंथ्स में ये पूरा बर्न आउट हो जाएगा। अंडरस्टूड। पूरा नहीं पर पॉजिटिव हो जाएगा, लार्ज पार्ट ऑफ इट। यस, अंडरस्टूड। और अपना अबाउट ये जो 75% यूटिलाइजेशन है, ये मैक्सिमम होता है या यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा रूम होता है आगे बढ़ने का? मतलब देखो एक चीज है, ये 365 दिन का एवरेज रहता है, लेकिन देखो 26 डे वर्किंग रहते हैं मंथली, तो और भी छुट्टी आती है, तो मतलब उसको कंसीडर करके ये मतलब निकाला हुआ है। अगर हम लोग 26 जो है उसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रहता है, तो हम लोग डीजी से या किसी से मतलब वो करके 2 दिन और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रही, वो एक्स्ट्रा हो गया जाएगा, वो ठीक है। राइट, अगर वो हुआ तो अच्छी बात है, ऐसा मतलब। हाँ। यस, अभी हम लोग प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है उस पे हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, रियलिस्टिक 75 है, शायद इसमें कुछ अगर बढ़े तो थोड़ा स्कोप रह सकता है, मतलब। यस, राइट। एंड ऑन एन एवरेज अपना मतलब बिटवीन 9 to 10% पैट मार्जिन रफली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब ब्रॉडली? यस, तो स्टेबल रखेंगे हम 9.5 से जो आसपास है उसको स्टेबल रखेंगे हम लोग ट्राई यही कर रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर ले तो उसको मैनेज करके चले। राइट, परफेक्ट। मेरे एंड से फिलहाल इतना ही है। जस्ट कम। ओके, थैंक यू सो मच पारस। Thank you. Next question is from line of Krimesh Gala, individual investor. Please go ahead. हेलो। हाँ सर, ये आपने जो बोला कि ये 1140 CR का ऑर्डर बुक है, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कितना रहेगा? मतलब ये ऑर्डर बुक कब तक हम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे? ये मैक्सिमम 1 साल का रहेगा। ये 1 साल का। अच्छा, और सर ये दूसरा आपने बोला कि ये साल आप कैपेसिटी 1.1 गीगावाट का कर देंगे, और आपने बोला कि 75% यूटिलाइजेशन रहेगा पूरे साल का। बट आपका मशीन अगर अगस्त में आएगा तो मतलब FY26 का यूटिलाइजेशन परसेंटेज वाइज कितना रहेगा फिर सर? अभी उसका 750 का 75% आप पकड़ सकते हैं। अभी का जो 1 2 3 4 एवरेज 70 के आसपास रहेगा, क्योंकि अगस्त में आ रहा है हमारा, तो ऑपरेशनल अगस्त से होगा, पर उस हिसाब से वहाँ पे मुझे मिलेगा 8 मंथ के आसपास ही, तो हमारा जो रहेगा वो 70 के आसपास रहेगा। 65 to 70 टोटल 1.1 पे पूरे साल। अगले साल 27 में इट विल बी 75%। अच्छा, और ये आपने 1 साल का एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक बोला, मतलब ये फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज रिसीव्ड उससे 1 साल के अंदर ये सारे ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे, बराबर है? यस, हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर तो 6 महीने में 5 महीने में भी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक टाइमलाइन होता है टोटल का। ईपीसी का टाइमलाइन थोड़ा ज्यादा रहता है, बाकी जो सप्लाई का रहता है, जैसे अभी जेटवर्क का भी था, तो 6 मंथ है फ्रॉम द अप्रूवल, तो 6 महीने में ही वो खत्म हो जाएगा 500 करोड़ का जो ऑर्डर है। तो उस हिसाब से बाकी ऑर्डर भी कोई 3 महीने में है, आगे तो ईपीसी का भी ऐसा ही काम है, तो टोटल ये ओवरऑल जो हमारा वो 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो सर कुछ परसेंटेज दे सकते हैं कि ये ऑर्डर बुक में से कितना % अभी कंप्लीट हो जाएगा ये FY26 में?
इसमें क्या है ना, एक आप देखिए कभी हमने एक किर्लोस्कर का मतलब फरवरी में जनवरी में मॉडल लिया था और 15 जनवरी से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था और 15 मार्च या 16 मार्च के आसपास हमने 57 करोड़ का ऑर्डर उसको फिनिश किया है। कुणाल बराबर है? एक महीने हमने 32 डेज में हमने पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। उसमें भी बहुत सारे वहां से ही इश्यू थे साइट से वगैरह, क्योंकि हमारा मास प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से 32 में 40 मेगावाट का हमने काम किया है। जो हमने आपको जो 75% की बात कर रहे हैं ना, जब हमारी कोई ऐसे मतलब होता है कि भाई टारगेट के हिसाब से होता है तो हम अपनी कैपेसिटी जो है ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं। अच्छा, और सर हमारा ये जो क्या कैपेसिटी हो जाएगा 1.1 गीगावाट का, तो अप्रोक्सीमेटली मंथली रेवेन्यू टारगेट हम क्या पकड़ रहे हैं ईपीसी प्लस मॉड्यूल का? नहीं सर, हम मंथली नहीं बता पाएंगे क्योंकि फ्यूचरिस्टिक रहेगा, तो एज पर दी गाइडलाइन। पर हमारा ग्रोथ जो रहेगा वो जो हम पास की जो हमारी जर्नी है उसके बेस पे रहेगा, और आगे जो हमारा ऑर्डर बुक अभी देख रहे हैं हम लोग, और जो हम लोग बोल रहे हैं कि साल में हम खत्म करेंगे, तो आप भी सर कैलकुलेशन लगा सकते हो कि हमारा ग्रोथ क्या रहेगा। बट हाँ, हम मंथली बेस पे अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे सर, सॉरी। अच्छा, तो सर आप अभी का मंथली रेवेन्यू क्या रहेगा वो बता सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि एनएससी में हमने कोई चीज ऐसी इंटीमेट नहीं की है, तो हम लोग कुछ भी मार्च ओनली हम लोग 25 का ही बता सकते हैं सर। आप एवरेज निकाल सकते हैं, कि भाई हमारा जो एक साल में जो मतलब जो है मॉड्यूल मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, इसमें 75% या 70% हमने बोला, तो उसके ऊपर से आप एक टारगेट ले सकते हो सर, टारगेट निकाल सकते हो सर, जो मार्केट उस पे हम लोग रहेंगे, वो टारगेट पे रहेंगे सर हम। अच्छा, और सर ये एवरेज सेलिंग प्राइस क्या रहेगा पर गीगावाट का मेगावाट सॉरी? सेलिंग प्राइस तो क्या है ऊपर नीचे होता है, पर आप एवरेज पकड़ सकते हैं 1.4 के आसपास पर मेगावाट का रेट पकड़ सकते हैं, अभी जो मार्केट रेट कर रहा है 1.4 या पर मेगावाट। ओके, 1.4 डिपेंड्स रहता है प्राइस के ऊपर, सेल वगैरह के, पर अभी आप 1.4 सीआर पकड़ सकते हो, 1.35 से 1.4। ओके सर, थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Shalin Tanna, individual investor. Please go ahead. सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने रूल निकाला है ALCM का कि जून 2026 तक हमें सेल मैन्युफैक्चर इंडिया में करना है, पर हमारा अभी कोई प्लान नहीं है उसके लिए, तो वो हम तो PSU प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज मेजॉरिटी हमारी ऑर्डर बुक वहीं से है, तो उसके लिए हमारा क्या विजन है? हम लोग इसके लिए जो मार्केट जो चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग अपनी जब जैसे मार्केट मतलब बताएगा भाई ऐसे करना पड़ेगा, तो वो हमारी तैयारी रहेगी। मतलब जैसे जैसे अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसके हिसाब से हमारा मतलब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। मतलब जून 2026 के बाद तो हम गवर्नमेंट मतलब ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। अभी एक चीज होती है कि भाई आज भी इंडिया में अभी भी अगर पकड़ो तो 5% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है सेल का, 5-6%। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई अगर 2030 तक जो टारगेट करना है उनको, तो अगर ये ऐसे डिसीजन लेंगे तो मतलब जो उनका टारगेट है वो नहीं होगा। गवर्नमेंट वहां पे डिसीजन ले रही है जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, जहां पे गवर्नमेंट सब्सिडी है। आज भी आप देखिए कि भाई नॉर्मली क्या होता है, DCR सेल का ये जो है मतलब वो वहां पे है जहां पे सब्सिडी है, जैसे सोलर पंप है उसमें, फिर ये जो मतलब सूर्य घर योजना है, और जो बड़े बड़े मतलब ये जो प्रोजेक्ट जहाँ पे सब्सिडी है वहां पे ही सेल मतलब DCR यूज होते हैं।
और गवर्नमेंट में अगर ये जो बड़े बड़े लेवल पे जो काम हो रहा है पावर प्लांट में, उसमें इंडियन गवर्नमेंट अभी भी उसमें नहीं है क्योंकि आपको डीसीआर सेल यूज करना है, तो वो टाइम लिमिट बढ़ सकती है। और अगर नहीं बढ़ती तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग आगे काम चालू है हमारा। समझ गया। और सर एक और क्वेश्चन है कि हमें बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं नेटवर्क वगैरह प्राइवेट कंपनी से, तो हम लोग उनका मॉड्यूल सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ हम ईपीसीटी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें हमारी मार्जिन भी बढ़ेगी और हमें ज्यादा मतलब ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी, तो हम ईपीसी ऑर्डर क्यों नहीं ले रहे बड़ी प्राइवेट कंपनी से? आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमने पहले भी बताया कि हम लोग अपनी पहले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे ही अभी हम लोग उसमें ही फोकस लगा रहे हैं कि भाई हमारा यही टारगेट है कि पहले मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग और मॉड्यूल सप्लाई में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपने खुद के भी टेंडर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, बहुत सारे टेंडर पार्टिसिपेट किया है, तो उनके रिजल्ट आना बाकी है। तो हम लोग भी आप जैसे बताया उसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी में हम लोगों को क्या है ना कि भाई हम लोग गवर्नमेंट ईपीसी काम एक ऐसी चीज है कि भाई लॉन्ग टर्म चलता है, मतलब 1-1.5 साल निकल जाता है। तो ईपीसी काम का मतलब ये है कि भाई आपको अगर आप तो मतलब सोलर से मतलब बहुत सारा नॉलेज आपका आपने मतलब जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जो बता रही है वो भी आपने बताया, तो आपका मतलब अच्छा नॉलेज है। तो आपको भी पता होगा शायद कभी 2 साल पहले मॉड्यूल का प्राइस क्या था, मतलब तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई अपनी जो मतलब ईपीसी जो कैपेसिटी है हम लोग, तो वो कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। टेंडर तो अगर आप अभी तो क्या होता है हर दूसरे दिन गवर्नमेंट एक बड़ा टेंडर निकाल देती है, तो मतलब हर टेंडर को पार्टिसिपेट करके अगर ले लेंगे तो जो मार्जिन हमारा जो है जो मेंटेन रखते हैं वो मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। इसीलिए रॉ मटेरियल का कॉपर का रेट बढ़ जाता है, कभी सेल का रेट कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम फ्रेम का मतलब जो रॉ मटेरियल का जो ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग मालूम है कि हम लोग इतना ही मतलब साल में काम कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से पार्टिसिपेट भी करते हैं हम लोग टेंडर, और उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Tejas Dubey from ALUS Financial Services. Please go ahead. हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो सर मेरे 2 सवाल थे कि लास्ट कॉल में आपने अदर प्रोडक्ट्स विद इन सोलार सेक्टर में सोलार सेल के अलावा आपने लिथियम बैटरीज की भी बात की थी फॉर बैकअप सिस्टम्स, कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है 2 घंटे के बैकअप सिस्टम जनरेशन के सोल्यूशन में। तो मेरा वो था कि उस पर क्या अपडेट है। और दूसरा आपने भी बोला था कि आप B2C मार्केट्स में भी घुसेंगे, हाउस होल्ड एप्लीकेशन, और ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेशन फास्ट हो। तो ये दोनों चीजों पे क्या अपडेट्स है, मुझे ये जानने थे। अभी हाउस होल्ड का जो बात है, हम लोग अभी हमने जो अभी टीम एक्वायर किया मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए, हम लोग अभी जो वीपी से लेके हमने असिस्टेंट सेल्स तक का हमने रिक्रूटमेंट किया और अभी कर रहे हैं। अभी हम लोग साउथ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये स्टेट में हमारी पूरी टीम भी है सेल्स और मार्केटिंग की। उसके अलावा हम लोग फास्टली हम लोग जो भी एग्जीबिशन गवर्नमेंट के रहते हैं, जो प्राइवेट एग्जीबिशन वगैरह सोलार के रहते हैं, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि हो गया स्मार्टर, हो गया गांधीनगर, फिर हमने री नेटवर्क करके था गुजरात में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। अभी आज भी हम लोग 11, 12, 13 हम लोग विजयवाड़ा में है, हमारा स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पे भी। और हम लोग दिल्ली आ रही है बोलते सबसे बड़ा एक्सपो सोलर का, उसमें भी हम लोग विजिबिलिटी के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और रहा हमारा डीसीआर मॉड्यूल में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी, कि हम लोग 2-3 सेल मैन्युफैक्चरर, उससे हमारा इनिशियली अभी बातचीत चल रहा है कि हम लोग वो टाइमली हमें सोलर सेल दे, जो हम लोग डीसीआर मॉड्यूल जो कंज्यूमर एप्लीकेशन होता है, जैसे रूफटॉप वगैरह हो गए, सब्सिडी प्रोजेक्ट,
सब्सिडी वाला, उसमें हम लोग काम कर सके। तो वो भी होपफुली अभी बात चल रहा है, तो उसका भी एक बार फाइनलाइजेशन हो जाएगा हमारा। और आप भी देख रहे हो हमारा अभी मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह फुल फ्लेज में चालू है। तो हम लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी इतना एग्रेसिवली कर रहे हैं हम लोग, और पूरी टीम है अभी हमारे पास सेल्स में, हर एक स्टेट में हमारी टीम अवेलेबल है अभी। और हमने मतलब FM में एड भी चालू कर दिया है, मतलब हमारा सोशल मीडिया हो गया, रेडियो वाला एड हो गया, एग्जीबिशन हो गया, हम हर तरीके से अभी उसको ब्रांडिंग करें। हम ऑटो रिक्शा ब्रांडिंग हो गया, होर्डिंग्स वगैरह हम लोग सब पाइपलाइन में, उसका भी अभी फाइनलाइजेशन पे वो सब चीजें हमारी, तो वो अभी आपको विजिबिलिटी दिखेगी थोड़े टाइम में। और साउथ हो गया, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में, वहाँ पे भी आपको हमारी विजिबिलिटी दिखेगी थ्रू एग्जीबिशन और ये ब्रांडिंग के थ्रू, और वहाँ पे हमारी फुल टीम है वहाँ पे। ओके, मतलब B2C सेक्टर में हम एक्सपेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, हम लोग वहाँ पे एग्रेसिवली है, इसीलिए हमने पूरी टीम हायर की हुई है साउथ में। और DCR का भी जो अभी इश्यू आ रहा है, तो हम लोग बड़े सेल सप्लायर है जो DCR के, उसके साथ हमारा इनिशियली बातचीत चल रहा है कि हमें पूरा ये कंसिस्टेंट हमें टाइमली सप्लाई करे एक नंबर वन पे DCR सेल जी। तो और वो लिथियम बैटरीज के बारे में, लिथियम बैटरी के बारे में बैकअप वाला जो अभी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली मार्च में, कि भाई आज जितने भी इंडिया के जो पावर प्लांट है, मतलब उसमें मतलब 20% मतलब बैकअप सिस्टम के साथ वो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है। अब उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेंडरों भी पार्टिसिपेट किए करते हैं। और दूसरी चीज है कि भाई अभी हमने एक बिहार में जो प्रोजेक्ट लिया हुआ है, तो मतलब जो है स्ट्रीट लाइट का है, उसमें लिथियम बैटरी के साथ है, जो बैकअप है लिथियम बैटरी के साथ है। तो हमने उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमने थोड़ा मोटा असेंबलिंग का काम स्टार्ट कर दिया है, मतलब मॉड्यूल का सेल लाके चाइना से हम लोग सेल लाते हैं, जैसे मॉड्यूल का है मतलब होता है वैसे सेल, उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं उधर। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Next follow-up question is from line of Ashish Rawat from MS Clockstock. Please go ahead. केतन भाई, मेरा कैपेसिटी एडिशन को लेके एक सवाल था। अभी जैसे अपन लोगों ने ये 1 गीगावाट ऐड किया था, तो चाइना से मशीन आया, अपने बंदे भी गए ट्रेनिंग के लिए। ये सब करते करते लगता है 9 महीने तो हो गए। अब जिस हिसाब से अपना सेल चल रहा है, ग्रोथ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले आफ्टर एडिंग द कैपेसिटी, आने वाले 1-1.5 साल के अंदर दोबारा 2 गीगावाट करके कुछ तो आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा करके। तो वो टाइम पे भी क्या अपने को इतना ही टाइम लगेगा? क्या अपने पास इंफ्रा, जमीन, लैंड, फैक्ट्री सब रेडी है क्या? और कितना टाइम लग जाएगा उस कैपेसिटी को ऐड करते टाइम पे? ये मेरा सवाल है। हमने क्या है ना, हमने हमारे नाम से मतलब लैंड परचेस किया हुआ है और उसको NA कर दिया हुआ है। हम लोग अपने मतलब बिल्डिंग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी अगर टेक्नोलॉजी, अभी क्या वेट करना पड़ता है कि हर 2 साल में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। और टेक्नोलॉजी का अगर फायदा उठाना है तो मतलब आपको ये है कि भाई बिल्डिंग तैयार होना चाहिए। आपका बहुत बड़ा मतलब सवाल है, बहुत अच्छी चीज है कि भाई अगर इमरजेंसी में आपको अगर डिसीजन लेना है तो बिल्डिंग तैयार होने में कम से कम 1.5 साल निकल जाता है। यूटिलिटी और बिल्डिंग्स, पावर, ये सब करने में 1-1.5 साल तो निकल जाता है। तो हमने अपनी वो तैयारी है। अब किसके लिए हम करेंगे, लेकिन आपकी बात सही है, तो हम लोग अपने नाम से मतलब लैंड तो परचेस कर लिया इसका। अच्छा, मतलब अपने पास लैंड है, और आजकल तो वो शेड लग जाते हैं, तो कोई ऐसी मतलब वो कंक्रीट की इमारत की बात नहीं है, तो वो 1.5-2 महीने में भी रेडी हो जाता है। फैब्रिकेटेड जो आजकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। ये आप जानते हैं इंडिया है, बोलेंगे सब कुछ सही कर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। अगर आप मानेंगे भी 2 महीने 3 महीने में हो जाता है, इम्पॉसिबल है।
क्योंकि अभी अप्रूवल अगर हम मुझे कोई भी लैंड लेता हूँ तो मुझे मतलब एग्रीकल्चर लैंड होती है तो मतलब उसको होगा। हाँ, तो उसमें ही गवर्नमेंट एक दो ढाई महीना तो उसमें लग जाता है। उसके बाद अगर बिल्डिंग आप स्टार्ट करोगे तो इंडिया में तो मालूम है कि इसके सीजन में इतना मतलब स्लो चलता है, फिर आती है दीपावली, फिर आती होली, तो वो सब कहने की बात अगर मोटा मोटा काम स्टार्ट हो जाएगा आपका, बिल्डिंग अगर खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो अंदर यूटिलिटी चाहिए वो सब करने में टाइम और अलग से चला जाता है। पीबी शेड खड़ा करना वो बड़ी चीज नहीं, हो तो अगर एक महीना तो ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बोल दिया। पीबी शेड खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके लिए जो इंफ्रा करना है, बाकी जो चीज है उसमें टाइम जाता है। तो मतलब अपने पास ये सब पहले से रेडी है, इनफ है आगे एड ऑन करने के लिए? रेडी कर रहे हैं हम लोग, बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। साथ वो चल रहा है प्रोजेक्ट? हाँ चल रहा है। अच्छा, तो मतलब अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, अपने को मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना अभी लगा अगर हम आगे एक्सपेंशन। नहीं सर सॉरी, मेरा ये हम लोगों ने जब आईपीओ लाए हम लोग जुलाई में, तब हमने बोला था हम लोग कैपेसिटी बढ़ रहे हैं 750 के आसपास। तो सर हमारा जो प्रोडक्ट है इससे स्टार्ट हो गया था सर। हमने अगस्त में मशीन बाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होता है 45 डेज उनका भी लगता है टेस्टिंग वगैरह में। उसके बाद वेसल वगैरह जो लाइन में लगता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन होता है। तो मोटा मोटी वो भी हमारा 5 महीने में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया दिसंबर में सर। अच्छा, बिल्डिंग से उनका कहना है कि बिल्डिंग तैयार होता है ना तो 5 महीने में हो जाता है, वो बिल्डिंग की बात। डीआरएचपी अगर आप सर देखोगे तो हमने डीआरएचपी में और आरएचपी में हमने बोला था कि हम लोग 400 मेगावाट कर रहे हैं इन जुलाई 24। और हमारा जैसे ही आईपीओ हुआ पूरा खत्म, उसके बाद हमने पेमेंट वगैरह किया। उसके जो स्टेज वाइज से मशीन थोड़े बहुत करेक्ट करने थे, हमने वो भी किया एआई टेक्नोलॉजी वगैरह एड ऑन करके। और हमने अगस्त में उसका जो एडवांस का टर्म शीट वगैरह फाइनल करके हमने दिसंबर में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया सर। तो जो अभी 3 महीने का हमने वहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी का बेनिफिट हुआ। समझ गया। यस सर प्लीज। हाँ, नहीं बस यही था। थैंक यू कितने। ओके सर, थैंक यू। Thank you very much. Ladies and gentlemen, due to time constraint, we'll take that as the last question. I'll now hand the conference over to Mr. Ketan Patel for closing comments. देखो, हम लोग तो इन्वेस्टर है, उनको हम लोग यही मानते हैं कि वो हमारे पार्टनर है। और हमारी मतलब हमारी एक ऐसी विचारसरणी है कि भाई आप तो एक बार प्लीज हमारे यहाँ पे मतलब फैक्ट्री विजिट कीजिए, और हमको अगर कोई दिक्कत, हमारे से कोई मतलब कुछ गलती भी होती है तो आप हमें बताइए, उसमें भी हम आगे मतलब जो हमारे से होगा पॉसिबल तो हम लोग वो भी काम करेंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सब जोड़ के कंपनी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी सोच रहेगी। और सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार हमारे यहाँ पे प्लांट विजिट कीजिए, ताकि हमारे में अगर और दूसरे में क्या फर्क है आप हमको बताएंगे तो हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। Thank you so much, everyone. Thank you very much. On behalf of Ganesh Green Bharat Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines. Okay. Thank you. Thank you so much, everyone.